Good morning, everyone. I'm Chavan here, and along with me, Mr. Mohit Agarwal is here. He'll be taking through the webinar. Mohit Agarwal is a full-time trader, uh, from Pune. So, I mean, he has been an avid user of Strike, and he's been using the Strike UI Insights. We have done this webinar before, but for the new users, we thought we'll again redo it. So this is all about options buying, how you can use the Strike OI insights for options buying. Go through the webinar and you can start using the Strike. If you are still not using it, it's the right time. You can go to web.strike.money and you can sign up and start using. So let's start the webinar. The Q&A will be taken up in the end. It will be this webinar will be a mix of Hindi and English, majorly in Hindi. The Q&A will be taken up in the end. Everyone will get their chance to ask the questions and clarify your doubts. So let's start. So Mohitji, you can start your presentation. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. I don't have any presentation, so we'll start from the strike itself. ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक्स हियर. सब लोगों ने स्ट्राइक के टेलीग्राम चैनल पे चार्ट देखा होगा. yesterday evening it was shared for IRFC, right? And we'll start from there. See, every price movement follows through phases. There is a phase of consolidation and there is a phase of movement may be up or down. Like yesterday the stock shared IRFC was of weekly chart. I have opened that chart itself. Okay, so if you see this whole phase is, we can consider it as a consolidation, and then there is this small price movement. Well, it looks small because we have zoomed out quite a bit. Then again there was a consolidation, and then again there is the movement, right? This one, after the consolidation broke, this movement. So for an option buyer, we are looking for an entry where the movement starts, right? Not when the price is in the consolidation phase. We don't want to enter somewhere here, because in that case our option premium will decay. So as an option buyer, we look for the movement to start, and for an option buyer, we look for the consolidation to start. So now, how we see these consolidations actually happening? For this, the indicator we use is, just a minute, let me remove these drawings, is Bollinger Bands. Bollinger Bands is basically your two standard deviation bands centered around a particular MA, moving average. In standard settings, the moving average will normally be 20 period moving average, right? You can see that is available in every software. The length is 20, this is 20 period moving average, and we are using a 22 standard deviation, right? The Bollinger Band has a particular characteristics where it consolidates, it compresses, and then it expands, right? So this indicator helps us to identify where the movement has started, right? When the price has reached, suppose here in this range 32 33, and we are, as an option buyer, we don't want to enter it here. Why? Because the Bollinger Bands is at its extreme. See here, the width is at its extreme. Now there is an indication that the phase of consolidation will continue and Bollinger Band will try to squeeze itself. So the movement consolidation started, right? This Bollinger Band works on every time frame, be it weekly, be it daily. See, again, there is a contraction, there is a expansion. There is a contraction, there is an expansion. There is a contraction, there is an expansion. Now, as an option buyer, we are using hourly charts. We are not using daily chart. We are not using weekly charts. We are using hourly charts.
right? Because we want to capture the move of 2 to 3 days. Beyond 3 days, the premium is going to automatically start decaying, right? So again, अर्ली पे भी आप देखोगे वही phases चलते हैं. There is a contraction and there is expansion, right? Every chart, every instrument where there is price movement plotting, this indicator works. Now the question is, how do I identify when the contraction has ended? Because as you can see, this Mohit, contraction lasted for, hello? sorry to interrupt. If you can do it in Hindi, it will be better. Most of the users are requesting for Hindi. Okay, ठीक है, sorry. I'll use more of Hindi. अभी कहाँ से स्टार्ट से शुरू करूँ? नहीं, यहीं पे ठीक है ना? हाँ, यहीं पे ठीक है सर. तो हमें ये नहीं पता होता है कि ये कंसोलिडेशन कितने दिन चलेगी, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चली फॉर 7 बार्स, यहाँ पे कंसोलिडेशन सिर्फ 2 बार्स, 2 कैंडल्स बनी सिर्फ कंसोलिडेशन की, बट एक्चुअल कंसोलिडेशन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट? ये तो हम सबको पता लग जाता है. हम फंसते कहाँ हैं? एज एन ऑप्शन बायर हम यहाँ पे फंसते हैं, इस पॉइंट पे. We see that band has squeezed quite a bit and we expect the Bollinger Band to start expanding or the move to start. ठीक है? इस 2-3 बार्स में we get stuck. Why? Because हम इस green bar पे entry मार देंगे, supposing, and then it goes into more consolidation like here. यहाँ पे ये बार पे हमने अगर कंसोलिडेशन के बाद की तो कैसे होगा? यहाँ पे this bar 9:15, the whole day the move, there was no move, right? So where does strike helps us? The strike has strike में एक स्कैनर है जिसके बेसिस पे हमें ये पता लग जाता है कि बॉलिंजर बैंड्स का एक्सपेंशन कब हो रहा है. क्या एक्सपेंशन के मोड में आ रहे हैं कि या बॉलिंजर बैंड्स कॉन्ट्रैक्शन के मोड में है? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? तो हम स्कैनर्स में जाएंगे. स्कैनर्स में टेक्निकल स्कैनर्स में बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है जी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बास्केट्स है आपकी सारी, हर इंडेसिस, FNO, 50, 100, 500 सब कुछ है. हम ऑप्शन प्लेयर्स हैं, हम चूज कर रहे हैं सिर्फ FNO बास्केट, ठीक है जी. मार्केट कैप का हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो 1000 करोड़ कुछ भी हो सकती है, बिकॉज हमें तो सिर्फ FNO से मतलब है. टाइम फ्रेम हम चूज करेंगे आवरली, नॉट डेली, नॉट वीकली, नॉट मंथली. और बॉलिंजर बैंड्स का जो स्कैनिंग हम यूज करेंगे, अब सी ये है अर्ली बैंड टाइटनिंग, ठीक है ना. इससे पता लगा है कि द बॉलिंजर बैंड्स ने मूव कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिए. देखिए यहाँ पे इस कैंडल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है, तो ये अर्ली बैंड टाइटनिंग पे आ गया. बट हमें कॉन्ट्रैक्शन मोड में नहीं एंट्री लेनी है, हमें लेनी है अर्ली बैंड वाइडनिंग पे. सो दिस इज बेसिकली आवर एंड स्कैनिंग फॉर वेदर बॉलिंजर बैंड्स ने प्राइस है स्टार्टेड मूव और नॉट, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है. बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड होगा, उसके बाद ही प्राइस मूवमेंट का कंफर्मेशन आएगा. जैसे ये बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, बट स्टिल प्राइस अभी भी इस हाई के नीचे है, विच इज 463, राइट. बट बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन शुरू हो गया है आईटीसी में. यहाँ देखिए आईटीसी में यहाँ पे बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन हुआ, राइट, 5 जुलाई को. देन द मूव फॉर 2-3 कैंडल्स इट्स कंसोलिडेटेड एंड देन द मूव स्टार्टेड, ठीक है. तो पहला हमारा यूसेज रहेगा बॉलिंजर बैंड स्कैनर का. मैं लिख देता हूं.
ये तो हो गया हमें प्राइस मूवमेंट कैसे कैप्चर करनी है, कैसे पता करना है कि प्राइस हमें एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। सेकंड, अब प्राइस एक बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड तो हो गया, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हुआ इस कैंडल पे 26 जून 10-15 की कैंडल पे, बट देन प्राइस डिड नॉट मूव, वो वापस उल्टा चल पड़ा, ठीक है। इसमें हमें मदद करता है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, राइट। अभी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट सबको पता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जब किसी स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है, somebody writes ओपन इंटरेस्ट क्या है, द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। व्हेन अ राइटर राइट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वी से ओपन इंटरेस्ट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट हैज एडेड, ठीक है। अभी ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट जो है इट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। कैसे, ये देखिए, जैसे हम बैंक निफ्टी की मंथली निकालते हैं यार, वीकली पे नहीं करेंगे, ठीक। अभी ये ऊपर वाला टोटल ओपन इंटरेस्ट का है, नीचे वाले को भूल जाइए, आप ऊपर वाला देखिए। यहाँ पे एट 52,500 5,68,000 के ओपन इंटरेस्ट कॉल में आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 53,000 में 6,97,000 के, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत माइनर है, अभी प्राइस इस 2,500 के नीचे है। अब फॉर एज पर ओपन इंटरेस्ट थ्योरी ये हमारी 52,500 की अगर रेजिस्टेंस को तोड़ता है प्राइस, तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस और वी कैन से नेक्स्ट कंसिडरेबल जो ध्यान देने योग्य रेजिस्टेंस रहेगी वो हमारा 500 पॉइंट्स ऊपर है एज ऑफ नाउ। कल मंडे को क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है, पर एज ऑफ नाउ 52,500 क्रॉस करता है तो भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट्स लेवल पे होती है, जैसे बैंक निफ्टी है तो 500 पॉइंट्स पे, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है मेजर रेजिस्टेंस। मेजर रेजिस्टेंस मतलब जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, राइट। अब यहां तो मैं, जैसे हमने आईटीसी का चार्ट देखा, यहां पे मैं आईटीसी का ऑप्शन में जाता हूं, रुकिए, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, या तो मैं हर स्टॉक का चार्ट खोलूं, ठीक है, हर स्टॉक का जूम आउट करूं, आई डोंट नो कहां तक मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मैं देखूं अच्छा इसमें ये मेजर रेजिस्टेंस है 320 की, मेजर सपोर्ट भी 320 पे है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ पुट एंड कॉल इज एट 320, ठीक है। दिस बिकम्स अ टीडीएस जॉब, हर वक्त नहीं देख सकता, तो स्ट्राइक में वी हैव अ स्क्रीन विच इज कॉल्ड स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स। आप यहां से ऑप्शंस में जाएंगे, दोज हु आर यूजिंग दे नो इट, एंड देर यहां पे है स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स, ठीक है। इस स्क्रीन में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक पे है, बोथ कॉल एंड पुट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन ड्यूरिंग द डे, देखिए ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एज ऑफ डे फॉर 25th of July, highest open interest addition is for 25th of July series expiry during 12th of July। 11 को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, ये नहीं शो करेगा, ठीक है। वैसे ये हाईएस्ट लिक्विडेशन। तो और दूसरी चीज है यहाँ पे हमें देखना क्या है, जो हमने बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करी, दिस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम ये हमें हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का एक स्क्रीनशॉट दे देता है, स्क्रीनर दे देता है किसका मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है और किसका मेजर सपोर्ट कहाँ है। जैसे एस्ट्रल है, इसका मेजर रेजिस्टेंस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2500 कॉल पे और मेजर सपोर्ट है 2200 की पुट पे, ठीक है। सो ये इसकी रेंज हो गई।
वैसे ही गेल में 230 की कॉल में और 220 की पुट में। सो ये 10 पॉइंट का रेंज है। मेजर रेजिस्टेंस 230, ठीक है जी। तो हमारा वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑप्शन OI, हाईएस्ट OI स्ट्राइक ओनली। माइनर स्ट्राइक्स पे हमें कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि जब मेजर रेजिस्टेंस टूटेगी तभी मूव आएगी, ठीक है। अब इसमें देर इज एन इंटरप्रिटेशन कॉलम जहां पे देर आर 5 ऑप्शंस। न्यूट्रल मींस प्राइस अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कहीं है, या तो वो 60% सपोर्ट के ऊपर है, 40% रेजिस्टेंस के नीचे, या 50-50 पे है, बीच में कहीं है, ठीक है। ये तो एज फॉर एन ऑप्शन बायर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कितनी देर इसके बीच में रहेगा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। देन इट इज नियर रेजिस्टेंस। नियर रेजिस्टेंस का मतलब है प्राइस अपनी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली कॉल के विद इन 1.5% है, ठीक है। देन देर इज बिलो सपोर्ट, मतलब वो पुट की जो सपोर्ट है उस प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अबव रेजिस्टेंस कॉल की रेजिस्टेंस के ऊपर है। ये जो इंटरप्रिटेशन है, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक्स, ठीक है जी। तो यहां पे हमें देखनी है सिर्फ 2 चीजें कॉन्सेंट्रेट करनी है, अबव रेजिस्टेंस एंड नियर सपोर्ट, राइट। जो प्राइस ये जो प्राइस हैं, दीज आर फ्यूचर प्राइस, नॉट स्पॉट प्राइसेस, ठीक है। अभी ITC इज 460.05 फ्यूचर प्राइस, ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है, अबव रेजिस्टेंस। MNM इज नियर सपोर्ट, ये क्यों सिलेक्ट हो गया, हमें ये देखना है बिलो सपोर्ट, सॉरी, बिलो सपोर्ट एंड अबव रेजिस्टेंस, ये 2 देखनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 260 की सपोर्ट के नीचे को तोड़ चुका है, ठीक है ना। ये तो हो गए जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे फॉर ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स। अभी उसको यूज कैसे करेंगे, सी, अगर हम एंड ऑफ डे एनालिस्ट हैं, मतलब बेसिकली हम डे एंड पे एनालाइज करके नेक्स्ट डे के लिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे हर बार। तो अगर हम एंड ऑफ डे करते हैं तो पहले हम ओपन इंटरेस्ट को महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, एंड देन वी गो टू बॉलिंजर बैंड्स। तो हमारा स्टेप क्या रहेगा, ओपन इंटरेस्ट में हमें देखना है, अगर हम बाइंग ढूंढ रहे हैं तो हमें देखना है प्राइस शुड बी अबव रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर बाइंग, ठीक है, एंड देयर इज रिडक्शन इन कॉल का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे मैरिको है, दिस इज अबव रेजिस्टेंस, बट इसमें कॉल में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस और स्ट्रांग हो गई है। तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इफ देर इज नो मेजर मूवमेंट इन दिस स्टॉक ऑन मंडे, ये प्राइस यहां पे ही स्टॉप कर जाए या थोड़ा रिट्रेस पुल बैक करे, ठीक है। अगेन हमें नहीं पता चलेगा वो, और हम फंस जाएंगे अगर हम सिर्फ इसको देख के हम एंट्री करेंगे, तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट नहीं है। तो हमें देखना है अबव रेजिस्टेंस और कवरिंग। अभी कवरिंग कितनी देखनी है, देखिए लेस देन 1% भी है, 21% भी है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको ये जो दिखे ना, ये डॉट्स मतलब हाइफन्स कहीं किसी भी स्टॉक में, राइट, ओपन इंटरेस्ट एडिशन वाले में, दैट मीन्स अगर आप जैसे लाइव कर रहे हो तो दैट मीन्स कि दीज स्टॉक्स आर बैन पीरियड, ठीक है। तो आप नई पोजीशन तो बना नहीं पाओगे, बेसिकली आप ऑप्शन खरीद भी नहीं पाओगे, तो वी विल अवॉइड दीज, ठीक है, मतलब ट्रेड ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा,
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखते रहते हैं फिर अरे यार सब, मतलब वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दीज स्टॉक्स, राइट। हाँ, तो हम कहाँ थे कि हाउ मच ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन वी शुड सी बेसिकली क्या है, अगर वो इंडेक्स स्टॉक है, ठीक है, तो इंडेक्स स्टॉक में हायर सिंगल डिजिट मतलब 8-9%, 10%, दैट इज गुड इनफ, ठीक है, क्योंकि उसमें एक दिन में 10% रिडक्शन आनी मतलब देर इज सम सीरियस चेंज इन द स्ट्रक्चर, राइट। और मिड कैप्स में, बिकॉज एफएनओ बास्केट में आपके मिड कैप्स भी हैं, वी आर लुकिंग एट अ हायर डबल डिजिट, मतलब 14-15 के ऊपर, ठीक है जी। सो वी आर लुकिंग एट फर्स्ट रहेगा प्राइस अबव रेजिस्टेंस एंड देयर इज रिडक्शन इन कॉल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। शॉर्टिंग के लिए प्राइस बिलो सपोर्ट एंड देयर इज रिडक्शन इन पुट ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने स्टॉक्स कर लिए डिफाइन, जैसे डॉक्टर रेड्डीज 14% एंड अबव रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड स्टेप आ जाता है बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन, हम सीधा ओपनिंग पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक प्राइस बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन नहीं होता है वी विल नॉट एंटर। तो आर्ली चार्ट, जैसे मैंने पहले कहा, आर्ली चार्ट ही देखेंगे हम बॉलिंजर एक्सपेंशन, ठीक, बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन हो चुका है इसका, राइट। तो दिस कुड हैव गिवन अस अ गुड एंट्री पॉइंट ऑन फ्राइडे, राइट, क्योंकि यहाँ से बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन हुआ और यहाँ पे हमने देखा देयर इज 14% रिडक्शन इन कॉल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट। नाउ कमिंग बैक टू, अब रोज रोज एंड ऑफ डे एनालिसिस पे शायद नहीं मिले, एंड सम पीपल आर गुड एट इंट्राडे स्कैनिंग, दे वांट इंट्राडे स्कैनिंग आल्सो, उसमें हमारा प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं बीबी एक्सपेंशन, वो हम देखते हैं स्कैनर से। तो बेसिकली स्कैनर ऑन रहता है मेरा, जैसे ही यहाँ पे कोई लिस्ट आती है, ठीक है, तो आई सी द प्राइस, द स्कैनिंग इज हैपनिंग, सपोज जैसे यहाँ पे इस पे आई होती, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 12 मई और 12 जुलाई फर्स्ट आवर के बाद, राइट। तो आई वुड हैव गॉन टू द सेकंड स्टेप जहाँ पे मैं देखता बाइंग, वी आर अगेन, मतलब हम बाइंग फॉर एन एग्जांपल बाइंग के लिए ही देख रहे हैं, सी में कवरिंग ऑफ हाईएस्ट ओआई वाला, मतलब मेरा जो इस कॉलम की स्ट्राइक है उसमें कवरिंग, मैं और कोई स्ट्राइक नहीं देखूंगा जब तक मेरा ये रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा है, आई विल नॉट एंटर द ट्रेड। वाई? बिकॉज इससे नहीं चली, जैसे ये 6500 है, 6450 की भी स्ट्राइक ओपन होगी, अगर उसमें कवर हो गया, कवरिंग आ गई एंड माय प्राइस इज से 6470, ठीक है, बट 6500 में एडिशन शुरू हो गया, ठीक है, सो दैट मीन्स 25 on a stock price of 6500, there is hardly any move left, there is a possibility that वो 6500 को टच भी अगर करता है या यहीं से वो कंसोलिडेशन में चला जाए या यहीं से यहाँ वो 6500 को टच करके वापस आ जाए, तो मैं एज एन ऑप्शन बाय इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ठीक है, आई एंड अप गिविंग अवे माय प्रीमियम, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली आवर 2-step स्ट्रेटेजी, ठीक। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं आपको टू बेटर अंडरस्टैंड, राइट। जैसे जो मतलब देखिए हर इस सेटअप से आई वुड से हर हफ्ते 2 to 3 मिनिमम ट्रेड्स मिल जाते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अर्ली चार्ट, राइट, एंड दैट इज गुड इनफ। अब वो गुड इनफ कैसे है,
वो बताता हूँ आपको। जैसे जाइडस का है, राइट, मैंने जो ट्रेड लिया था जाइडस का, इसको हम रख लेते हैं यहीं पे, जाइडस ऑन 3rd जुलाई, ठीक है, जाइडस ऑन 3rd जुलाई, एंड ऑफ डे, अबव रेजिस्टेंस 27% रिडक्शन, ठीक है। तो उसके बाद ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 1200 पे, मतलब 100 पॉइंट का गैप है। मतलब दिस इज इररिलेवेंट, बिकॉज हमें तो ये देखना है 1120 भी हो सकता है, 1140 भी हो सकता है बीच में, वो हम बाद में देखेंगे। अभी चार्ट पे क्या सीन है इसका, ठीक है जी। ये है 3rd का आपका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। सी 1100 की कवरिंग के बाद 1150 पे है थोड़ा, ठीक है, एंड 1200 पे है। दिस इज 3rd एंड ऑफ डे चार्ट पे, अवली चार्ट। नाउ आई हैव एट द एंड ऑफ द डे 3rd को आइडेंटिफाई किया, क्या हो गया यार, कि मेरे को शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है ना। दिस वाज 3rd मॉर्निंग में ही एक्सपेंशन हो चुका था। सी जब शाम को देखा 3rd मॉर्निंग में ही एक्सपेंशन हो चुका था, बट द होल डे प्राइस उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। सो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट बन गया ये लेवल 1115, ठीक है जी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन 11:15 ब्रोक, क्योंकि कवरिंग वाज डन, तो दिस वाज 4th, दिस वाज 5th, and this is 8th early morning, first hour. So 11:15 to 11:83 in a span of 10 bars, 2 days, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी एग्जिट लेता तो 6 बार्स में 1168, ठीक है, 1.5 डे। तो दिस इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे हमने एंड ऑफ डे स्कैन किया, एक्सपेंशन देखा, एंड देन वी एंटर्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट, प्राइस कंफर्मेशन, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि वी माइट नीड टू वेट फॉर 1 मोर डे, जैसे ये 3rd को कंसोलिडेशन हुआ, हो सकता है 4th को भी कंसोलिडेशन होता है। वैसा एक एग्जांपल है आपका MGL का। ऑप्शन MGL on 26th of June, अबव रेजिस्टेंस 10%, ठीक है ना। ये है 26 ऑफ जून, 26 जून को क्या हुआ, ये है सर 26 ऑफ जून, दिस इज 26 ऑफ जून, ठीक है। इस दिन हुआ, अगले दिन कुछ नहीं हुआ, 27th ऑफ जून अगेन देयर इज ए कंसोलिडेशन, ठीक है। बट मजे की बात ये है कि 27th ऑफ जून को 11% मोर रिडक्शन, सेम लेवल, सो 2 दिन में 22% रिडक्शन, सिमिलर टू जाइडस, ठीक है। द मोर प्राइस spend time in consolidation, the faster, the more bigger will its move be। ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है ना सर। ये है 27th जून का एंड ऑफ डे, दिस इज 27 जून, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग
स्कैनर कंफर्म करेगा क्योंकि अर्ली एक्सपेंशन है, ये क्लोज होते ही कैंडल, मतलब ये यहाँ पे ही कंफर्म कर देगा मिड वे, बट आई विल वेट फॉर द कैंडल क्लोज विच वाज एट 1577, राइट? And from here, this is 1 day, 2 day, this is 1 day, 2 day, third day. 2nd July was third day and high is 1858. कितना हो गया? 270 पॉइंट, 18%, ज़्यादा हो गया ये नहीं? See, basically, such kind of trades, they are not common. ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड मिलते हैं, दैट यू विल फाइंड लाइक ZS, इसमें 3 से 4% की मूव आप कैप्चर कर सकते ऑफ द प्राइस। MGL जैसे आपको हर हफ्ते नहीं मिलेंगे, महीने में एक बार मिल जाएंगे। यहाँ क्या होता है कि जैसे मैंने जो नोटिस किया, हर ऑल्टरनेट मंथ में मेरे को 3-4 ट्रेड्स मिल जाते हैं। ऐसे जैसे फरवरी मंथ में मेरे को बहुत अच्छे बड़े बड़े ट्रेड्स मिले थे। बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मार्केट की मूवमेंट, ओवरऑल मार्केट मूवमेंट पे, ठीक है ना? फरवरी के बाद मेरा मार्च अप्रैल कंसोलिडेशन में गया, मई में बहुत अच्छे मिले, अप्रैल एंड में बहुत अच्छे मिले, जून वाज अगेन एवरेज काइंड ऑफ रिटर्न्स, मतलब ये ऐसे बड़े बहुत कम मिले, मतलब एक मिला होगा शायद। एंड अगेन ये जुलाई में 15 दिन में मेरे को 3-4 मिल गए हैं दिस बिग। So the MGL was one, then there was persistent, then सबसे मजेदार रहा कल का दिन, जो हमारा ये था एंड ऑफ डे, ये वाला स्कैनिंग का, ठीक है ना? अभी इसका एग्जांपल, वो हमारा कल का सबसे बेस्ट ट्रेड था, जो वो था TCS। मेरा दिख रहा है ना चार्ट? ओके, एक मिनट, मैं जरा कहाँ पे चार्ट दिखा ना मेरा TCS का, कैन समबडी कंफर्म? You can reshare your screen, Mohit ji. It is not. Yeah. नहीं, अभी अभी दिख रहा है दिख ना? रहा है. Yes. Yeah. So basically this was the scanner results of TCS। TCS का रिजल्ट आया था, it was good or bad, I don't know, I'm not good at analyzing those results। This was the scanner result, ठीक है? at 9:15 की आर्ली कैंडल पे, Bollinger Band expansion, right? And TCS before on Thursday, Thursday was 11th। अभी रिजल्ट है तो वी कीप बेसिकली टैब ऑफ दैट ना, कि हाँ रिजल्ट है तो कैसा मूवमेंट आएगा, तो एज अ ट्रेडर सब हर कोई उसको देखता है। तो आई न्यू कि 4000 की उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है? व्हेन द स्कैनिंग रिजल्ट केम, 4000 की कॉल में कवरिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है? हाँ, अब बोलोगे कि यू सेड दैट इट शुड बी 7 to 8%, बट क्योंकि ये रिजल्ट रिएक्शन थी एंड आई डुड नॉट वांट टू मिस, मतलब आप बोल सकते हो कि आई वाज लिटिल एग्रेसिव ऑन दिस ट्रेड, तो आई एंटर्ड बेस्ड ऑन दिस एंड दिस स्मॉल रिडक्शन, ठीक है? एंड वी नो व्हाट हैपेंड टू TCS yesterday, everybody knows, right? एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि क्या होता है, इनिशियल मूवमेंट के बाद एवरीबडी ट्राइज टू शॉर्ट, यहाँ पे रिजल्ट रिएक्शन आ गई, अब ये गिरेगा, लेकिन क्यों गिरेगा? रेजिस्टेंस तोड़ दी उसने, 4000 की कॉल में कवरिंग शुरू हो गई है, 4000 की पुट में 150% की राइटिंग शुरू हो गई है, राइट? तो बेस है शिफ्टिंग अप, so why should I short? So this is the benefit of your analyzing open interest, option open interest, right?
and from 4050 it all went to 4200. Okay. Now the question is how we will trade this option buyer. ये तो दो तीन तरह के स्कैनर्स हो गए, सिस्टम मतलब सिस्टम बन गया हमारा. हाउ व्हाट विल बी आवर टारगेट स्टॉप लॉस. सो वी विल ट्रेड बेस्ड ऑन द ऑप्शंस चार्ट, राइट. सो ऑप्शन चार्ट हम निकालेंगे 5 मिनट का. मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसी का दिखा देता हूँ, TCS का, राइट. सो दिस वाज द अर्ली 1 आवर का. नहीं, यहाँ पे नहीं छोड़ो. लेट मी ओपन द ऑप्शन चार्ट. गिव मी a minute, please. Why it is so slow? Okay. So the price was 4050 and the chart we are seeing is 4050, right? 2407 25 C 4050. 5 minutes. See, this was early morning high 10:15, close was here. So some entry was some. So I use 5-minute chart of my options, right? So 404548 was the price, 4050 was the ATM strike. I use this chart. Entry was somewhere around this 6566 at this candle, around 1030 candle, 1035. Stop loss will be the nearest swing low as per our comfort. Okay. So I was sufficient to, it was within my risk appetite, give away 10 points in the option price, right? And this is how it worked. So why I say this option price doubled, more than doubled. Again, like MGL, TCS kind of trades are not common. Okay. So we need to keep our expectations to that level. तो ट्रेलिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग वो आपको अपने हिसाब से करना है. सो दिस इज हाउ वी ट्रेड दिस सेटअप. ठीक है. सो दिस इज इट. Okay. एंड सर. Yes. Okay, Mohitji. So, okay, let's take up the Q&A. Okay. Whoever is having doubts, please raise your hands. हाँ बोलिए ना मोहित. एक मिनट. एक चैट में एक आया है क्वेश्चन. Is the OI Insights real-time data or end of day? See, OI Insights data is 15 minutes delayed. 5 minutes, sir. 5 minutes. Sorry. I'm very sorry. 5 minutes delayed. ठीक है. So it's मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाओ, 2-3 minutes delayed हर जगह है, right? But as Chavan ji will confirm, he is working on to bring it down to 1 minute. So right now it is 5 minutes delayed, as good as any other thing. ठीक है सर. सर कुछ और कहना आपको इस बारे में? Yeah, 1 minute probably next month आ जाएगा मोहित sir. We are working on it. Yeah, we have already discussed with NSE. We are just working on the new this one files what they have sent for 1 minute. We are working on it. Okay. Anyways, let's start taking up the questions. Yes. Okay, so Lokesh, you can unmute and you can ask your question. Lokesh, आपका आवाज नहीं आ रहा है.
Okay, Vaibhav. हेलो सर। Yeah. मोहित सर, मेरा ये डाउट था कि इन दी ओआई इनसाइड टेबल, तो आई नो कि हमें देखना है कि पुट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एंड कॉल का रेजिस्टेंस कम हो, कॉल तो ओआई कम हो रहा है इन दिस बाइंग की सिचुएशन में। बट वेयर डू वी सी एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ पे पुट एंड कॉल वहाँ पे नहीं मेंशन किया, सो मेरा उतना ही कंफ्यूजन है है ना, कि एक मिनट, लेट मी शो अगेन। मे बी आई मिस्ड आउट। या यू मिस्ड आउट, लेट मी शो। देखिए ये है ऑप्शन ओआईस की स्क्रीन, ठीक है। यस। आई विल रिमूव एवरीथिंग। ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है लिखा, ये दिख रहा है या इसमें। दिस इज स्ट्राइक कॉल। सी, ओके। कॉल का स्ट्राइक, कॉल का ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ओके। चेंज, पुट का स्ट्राइक, पुट का ओपन इंटरेस्ट एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज। ओके। सेम वे इन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी में भी कॉल और पुट है with same columns, और highest liquidation में भी same columns. So, okay. So we have to use a combination of the both addition and as well as the liquidation. हाँ, we have to use the combination of interpretation and this column. नहीं, we don't need to use OI addition liquidation, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे चेंज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ डे में भी दिख रहा है हाईएस्ट OI में, और लाइव हाँ। मार्केट में भी ये अपडेट होता रहेगा। ओके। ओके। ओके, तो ऐसा हो सकता है जैसे लूपिन है, राइट। ऐसा हो सकता है कि अभी ड्यूरिंग द डे 1800 की कॉल में जो रिडक्शन हुआ है वो हाईएस्ट ना हो, ठीक है। अभी लग रहा है कि 1800 की कॉल में इट इज सेम हाईएस्ट लिक्विडेशन, एंड यहाँ पे जो लिक्विडेशन है वो सेम है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे ये सन और नहीं, कि 1800 की कॉल में, 1800 की कॉल इज आर मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें लिक्विडेशन आया है। बट क्योंकि ये परसेंटेज बेसिस पे चलता है तो हाईएस्ट लिक्विडेशन स्ट्राइक में भी समवेयर एल्स। तो आर कंसंट्रेशन इज ओनली ऑन दिस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम, ओके। राइट। वन मोर थिंग। कॉलम थोड़े रेफरल पॉइंट्स है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ओके। ओके। One more thing I want to ask, sir. Sometimes we see that, let's say, Lupin is currently at 1800. If let's assume कि स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है, सो एट सम पॉइंट समटाइम्स आई हैव सीन दैट इन द मनी के पुट में भी एडिशन हो जाती है क्वाइट अ बिट, सजेस्टिंग दैट द प्राइस माइट रीच। तो कैन वी चार्ट में वैसा दिख सकता है ओआई के इसमें? हाँ, आपको इसमें दिखेगा ना, एडिशन हुआ है तो ये जैसे इसी में देख लीजिए, लूपिन में 1700 की पुट में एडिशन हुआ है, 1800 का प्राइस चल रहा है, और अच्छा ये तो वो है ना, इन द मनी नहीं है। और आपको हाँ। हाँ। जिसमें भी एडिशन होगा हाईएस्ट, सी अगेन, ओके। अभी देयर आर नंबर ऑफ स्ट्राइक्स ओपन, ठीक है। हर जी। स्ट्राइक में थोड़ा थोड़ा एडिशन हो सकता है, एडिशन लिक्विडेशन हर स्ट्राइक में होगा ड्यूरिंग द डे, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सो लिक्विड कि उसकी हर स्ट्राइक में मूवमेंट आएगी। लेकिन हर स्ट्राइक यहाँ पे नहीं मिलेगी, हर स्ट्राइक आपको ओपन इंटरेस्ट वाले चार्ट में मिलेगी, ठीक है। ओके। अब जैसे इसमें है आपका अबाउट इंडिया, अब इसके इन द मनी 29,000 की पुट में एडिशन नहीं हुआ, किस में हुआ एडिशन, किसी में नहीं हुआ। लेकिन ठीक है। तो पॉइंट हियर इज कि जो आपको इस टेबल में दिखेगा ना वो हाईएस्ट वाला दिखेगा, हाईएस्ट इन द सेंस कि उस दिन उस पुट, कौन सी पुट में सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है, सबसे ज्यादा लिक्विडेशन हुआ ओके। है। बाकी सबको वो डिस्कार्ड कर देगा सिस्टम, मतलब इस कॉलम को दिखाने के लिए आपको उसके रिस्पेक्टिव चार्ट में जाके देखने में सब दिखेगा, बट ऑन दिस शीट, क्योंकि इट इज अ समराइज्ड शीट बेसिकली, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ। यस सर, यस। आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। Okay. Next is Bijay Kumar. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग।
सर मैं पूछा था जो वाई बिल्डअप हुआ उसके साथ में वॉल्यूम का कोई कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा बताइए। किसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ द ऑप्शंस। यस सर। देखिए, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दो डिफरेंट चीजें हैं। बेसिकली क्या है, ओपन इंटरेस्ट आपका हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एडिड, ठीक है। ओपन अभी क्या होता है कि वॉल्यूम एक सपोजिंग मैं इसका ही लेता हूँ, लुपिन का है, ठीक है। लुपिन का चार्ट सो 1800 की कॉल में देर इज, ये क्या है? कौन सा डेट है? हाँ, 1800 की पुट में देर इज 4675 का रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा। बट लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन है, ऐसा हो सकता है कि ये 10,000 क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी हो सारे दिन में। सो 10,000 विल बी द वॉल्यूम। ओके 20,000 वॉल्यूम में भी हो सकता, बिकॉज मैनी आर इंट्राडे प्लेयर्स। जो इंट्राडे ओपन करके कवर अप करेंगे उनका वॉल्यूम में दिखेगा, उनका ओपन इंटरेस्ट में नहीं दिखेगा। तो सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि कॉल में अगर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है मतलब लाइव मार्केट में, तो सेम टाइम में पुट में वाई बिल्डअप होना चाहिए, मतलब वो परसेंटेज भी मायने रखता है क्या ज्यादा से ज्यादा? देखिए, अगर बिल्डअप हो रहा है तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। उसका मतलब यह है कि आपकी सपोर्ट भी ऊपर जा रही है, बेस बढ़ रहा है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। बेस तो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस मतलब टूट मजबूत रही हो है रहा और है, बेस बढ़ रही है, मतलब सपोर्ट है दैट इज एन वो एडेड मजबूत हो रहा एडवांटेज। हाँ, है। बट हम 10 चीजें देखेंगे तो हो सकता है कि हम मिस कर जाएं ट्रेड को, इसलिए मैं सिंपल रखता हूँ, एक ही चीज देखता हूँ। जी थैंक यू। Puneet Shah. So, hi, good morning, Moji. Good morning, गुड मॉर्निंग सर। Jonathan. So, what you've taught today is fantastic. एक आपका जो वो आप स्क्रीन अगर आप लगा पाएंगे, but the analysis, yes. So, sir, I do two types of trades. So, one is intraday and one is positional. For intraday, this insight what you've taught is very interesting. But however, for the positional option trade for the next month contract, so this you're showing presently is July. For my August contract, if I want to take a position, is there any possibility in this particular chart? I think the data has not come, but is there any possibility that we could have the percentage change per day, or the addition or reduction, of that particular strike price? Is that something which is viewable? सी वन थिंग, ये अगर आपने नोटिस नहीं किया है, आई हैव क्लिक्ड ऑन द कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। Yes. सो दिस इज कवरिंग ऑल 3 एक्सपायरीज, करंट, Yes. नेक्स्ट एंड फार, ठीक है, पर मंथ। Okay. तीनों में कहीं भी Okay. अगर ये स्ट्राइक ओपन है, उसमें कोई भी ठीक मूवमेंट है. है, दैट दिस सिस्टम विल टेक इनटू अकाउंट। इफ आई वांट टू सी इंडिविजुअल मंथ्स, तो आई विल अनचेक दिस, Okay. आई विल चेंज द एक्सपायरी। अब अगस्त की एक्सपायरी क्या है? 27 है, क्या है? एक मिनट, लेट मी सी। ऑफ अगस्त 29. So this is the screen for August expiry as on 11th. Okay, 11th को चेंज करते हैं डेट को, सॉरी आई नीड टू चेंज अगेन। 29th So this is only August expiry for Right, sir. each open contracts. Correct. ठीक, ऐसे ही हम सितंबर देख सकते हैं, ऐसे ही हम सिंस आप यहाँ पे देर आर मैनी राइट, सो बिकॉज देर आर Yes. वीकली एक्सपायरीज, तो आपको हर तरह की डेट मिलेगी। Hmm. तो अब 15 जुलाई अगर मैं सर्च करता हूँ तो उसमें सिर्फ मिड कैप निफ्टी मिलेगा मेरे को, राइट। Correct. 16 जुलाई को मेरे को इस बार फिर निफ्टी
निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मिलेगा, बट Right, सिंस वी आर right. कंसर्न्ड विद स्टॉक्स, सो वी गो फॉर Stock द options. मंथ एंड, राइट? तो बट आई यूज कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट बिकॉज मेरा जो ट्रेड का पर्सपेक्टिव रहता है, मेरे को 2 से 3 दिन, आई एम एन ऑप्शन बायर, आई एम नॉट दैट लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाय नहीं करता फिर, बिकॉज फॉर दैट you need a hell lot of a different kind of analysis. Purely based off open interest नहीं हो पाएगा. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. In the month of February there was addition in 750 puts of my of SBI cards. Sorry, Okay. March में था. हाँ, and the price was again around 720 750. Okay. But the price remained in that 700 to 750 till end of, मतलब वो 4th जून का अगर हम हटा भी दें तो अभी भी वो 700 से 750 के बीच में ही चल रहा है. जी. So if I have taken a trade based on pure open interest of May expiry, तो मेरे को कुछ नहीं मिलता ना. मेरी एक तो प्रीमियम ज्यादा होता और प्राइस मूवमेंट कुछ नहीं हुई. Right, So sir, but that's वो my थोड़ा thought illiquid है. process. That's my thought process. आपका डिफरेंट रहेगा तो obviously. नहीं, करेक्ट सर. तो उसमें कोई लिक्विडिटी का भी बेसिकली लिक्विड स्टॉक्स का एग्जांपल अगर लेंगे, सो फॉर एग्जांपल आई मीन वी टेक एनी हाईली लिक्विड आईटीसी ले लेते हैं. तो फॉर आईटीसी इट इज इजियर टू एनालाइज बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर कि मैं पोजीशन आगे का कैसे बिल्ड करूं या कैसे कैरी फॉरवर्ड करूं. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया आपने. तो इसमें कोई कॉलम है जहां पे बताता है कि प्रीवियस डे से कितना इंक्रीज हुआ है. ये है ना कॉलम सर. दिस इज चेंज लाइव मार्केट में आपका, जैसे आप 11 बजे देख रहे हो तो 12 जुलाई को 11 बजे का चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू 11th की क्लोजिंग. ठीक है. और Correct. अभी ये दिखा रहा है पूरे 12th जुलाई में फुल डे में क्या चेंज आया है. राइट. सो राइट फ्रॉम द डे 1 मतलब वो वैसे दिखा सकेगा क्या कितना नहीं, क्यूमुलेटिव वो चेंज हुआ. आपको, हाँ वो आपको ओके किसमें था यार, था है वो उसमें ना, ऑप्शन चेन में कुछ है क्या. तो बेसिकली इसका नेचर मालूम पड़ेगा कि शॉर्ट एग्जैक्टली शॉर्ट कवर है लॉन्ग. फॉर दैट यू नीड टू गो इन ऑप्शंस में, देर ऑप्शन चेन में जाएंगे. ठीक है. जी सर. उसमें देर इज दिस सब हेडिंग्स ओपन ओआई चेंज. अगर आप ओआई चेंज करेंगे तो आपको डे वाइज आपकी ओआई चेंज दिखेगा. राइट सर. ये ठीक है, डे वाइज है बट क्यूमुलेटिव नहीं आ रहा है फिर भी. क्यूमुलेटिव है ना ये दिस कौन सा वाला सर. नहीं, ये तो एक्सपायरी बेस्ड है. सॉरी, दिस इज एक्सपायरी बेस्ड. ये आई थिंक सर बीएसई या एनएसई का उसका है. हाँ नहीं, इसमें शायद नहीं है, शायद कुछ देखना पड़ेगा यार. आई डोंट यूज मेरा प्रश्न समझे ना सर. हाँ, you understand my question right कि मैं क्यूमुलेटिव कैसे देखूं. what is the cumulative change of the क्यूमुलेटिव of the चेंज तो आपको OI यहाँ पे दिख रहा है ना. अच्छा, क्यूमुलेटिव चेंज from so that is only from previous day what you're showing. हाँ, basically 24 hours change. नहीं वो नहीं है. Okay. वो नहीं है डेटा. Right sir, I thank you very much, appreciate it. Thank you. Next up is Jaspal Singh. Jaspal Singh ji. हेलो, आई एम ऑडिबल. Yes. हाँ, मोहित सर गुड मॉर्निंग. बहुत दिन से वेट कर रहा था आपका सेशन का. गुड मॉर्निंग सर. आपने जो सेशन पहले लिया था ये आई थिंक उसी का रिवाइज है ना. हाँ जी, हाँ उसी का, कुछ नया नहीं है. जी जी जी. तो ना मेरा एक डाउट था, बहुत दिन से मैं आपका वेट कर रहा था कि आपका सेशन होगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन आपने जो जेडोस का मुझे एग्जाम्पल दिया तो उसमें मेरा डाउट क्लियर हो गया. मेरा डाउट ये था कि जो हमारा हम लोग डे एंड पे जो एनालाइज कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे पे बुलिंजर बैंड का ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है, क्लोजिंग हो रही है
और सेम डे उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, नेक्स्ट डे क्रॉस कर रहा है, तो हम एंट्री ले सकते हैं नेक्स्ट या डे नहीं? मिलेंगे। हाँ। हाँ, तो वो आपने जेडूस के एग्जाम्पल दे के बता दिया। हम्म। तो ये हम मतलब नेक्स्ट डे कंसीडर कर सकते हैं, एक दो दिन बाद भी अगर वो हाई क्रॉस करता है देखिए उस केस अगर में? 2 दिन हो जाएंगे ना, 2 दिन हाँ हो जाएंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट में उसका चेंज अगर होना शुरू हो गया, सपोजिंग कि वो रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रांग होनी शुरू हो गई, जाइडस में ही अगर मैं लूं तो उसकी क्या थी कॉल, क्या थी? हाँ 1500 का कॉल था ना। सपोजिंग वो अगर ये 2 दिन हो जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 1500 पे राइटर्स दोबारा आने शुरू हो जाए, ठीक है। देन यू नीड टू कीप ट्रैकिंग द ओपन इंटरेस्ट ऑफ दैट कॉल। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रांग होनी शुरू हो गई मेरी, तो फिर देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेरे को रिडक्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या होगा, मतलब देन इट्स ऑफ नो यूज ना, द प्राइस में नॉट मूव। फिर वही 1-2% का फेक ब्रेकआउट देके वो नीचे आ जाएगा। उसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ग्लेनमार्क। देखिए ये बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन था, ठीक है। मेरे स्कैनर में आया, बट द रेजिस्टेंस मेरी स्ट्रांग होनी शुरू हो गई, ठीक है, 1400 की। ये आपने सेम डे देखा या फिर सेम डे देख रहा था मैं, मतलब अब स्कैनर में आया तो मैं देखूंगा ना, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग होनी शुरू होती है तो क्या होता है, ठीक है। अभी लाइव चार्ट देखते हैं ना अपन, इसको तो ये वैसे ही रख रखा है हमने, ग्लेनमार्क। व्हाट वाज द डे, 11 जुलाई। देखिए सर ये है 11 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई, क्योंकि 2 बजे आई। सी अगेन इट इज एट 215, बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन इज एट 215, ठीक है। 350 मतलब 215 से 315 वाली कैंडल 315 के क्लोज आया मेरा बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन स्कैनर, ये जो आया ये 315 पे आया। उसके बाद 15 मिनट, ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज फॉर माई नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, बिकॉज माई रेजिस्टेंस वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, नेक्स्ट डे उसने काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट दिया। अब यही यही चीज अगर आप 2 दिन, एक दिन अगर आप मतलब अगर आप वेट कर रहे हो तो ये यू नीड टू कीप ट्रैकिंग दिस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो जिसका ब्रेकआउट आपको दिख रहा था पिछले दिन। जाइडस में भी अगर नेक्स्ट डे वो मेरे को नहीं देता ये कंफर्मेशन, जैसे उसने ये सारा दिन किया है, ठीक है। अब सपोजिंग फोर्थ के बाद फिफ्थ को वो फिर से वो यहीं पे रहता, ठीक है, एंड द 1500 की कॉल में रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाता है ओपन इंटरेस्ट, तो देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से 1100 हाँ 1100 यहाँ ना? से यहाँ भी आ जाए। नहीं जाइडस वाज ऑन फोर्थ ना, स्ट्राइक तो प्राइस यहाँ है, से स्ट्राइक हाँ प्राइस। सॉरी 1100, 1500 नहीं 1100, हाँ 1100 सॉरी, यस। तो फिर वो नीचे भी आ सकता था, बट एमजीएल में, जैसे एमजीएल में हमने ये पूरा एक दिन वेट किया, ठीक है, बट उस वो वेट हमने इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट डे भी ये पूरा एक दिन हमने वेट किया 27 जून का, 26 जून के एंड ऑफ डे में स्कैनिंग में आया था, 27 जून का पूरा दिन वेट किया। वो इसलिए किया क्योंकि 27 जून को भी देयर वाज रिडक्शन, देन द मूव केम। तो मतलब बेसिकली आप नेक्स्ट डे कर सकते हो, एक दिन 2 दिन वेट कर सकते हो, बट अगेन द कंडीशन इज आपका दोनों कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन शुड मैच ना आपका। ओके ओके, कॉल हमको उसमें ओआई रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन होना चाहिए, मतलब चाहे वो पहले दिन 15% हुआ है, दूसरे दिन 1-2% तो कम होता। अगर नहीं हो रहा है, उल्टा एडिशन हो रहा है, तो देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, इट कैन रिवर्स।
सर क्या आप कोई ऐसा आप ट्रेड मतलब जो आपने किया हो यही सेम सेटअप पे और बाद में वो आपका एसएल देके गया हो, क्योंकि अभी जितने भी आपने ट्रेड दिखाए हैं वो सारे आपके विनिंग है। हाँ बिल्कुल गया है सर। अभी बाटा था शायद, बाटा वाज समवेयर। अब यार मेरे को, अब क्या होता है कि जो फेल होते हैं ना ट्रेड, उसकी डेट नहीं याद रहती है। नहीं नहीं हम उस कंडीशन में आपने बट क्या आई माइंडसेट थिंक था मोस्ट आपका कि प्रोबेबली बाटा था। हाँ बाटा वाज देयर, ये था, दिस वाज द एक्सपेंशन। यहाँ पे था 8th या 4th ही जुलाई था, लेट अस सी, चेक कर लेते हैं यार। ये है, हाँ ये 4 जुलाई 2:15 है, और ये 8 जुलाई 2:15 है, ठीक है ना। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। फोर जुलाई नहीं था, 4 जुलाई नहीं था, 4 जुलाई वॉज नॉट इन माई सिस्टम। 8 जुलाई नहीं, बट इंट्राडे में कुछ हुआ था शायद, 4 जुलाई में कुछ तो हुआ था यार। मतलब दिस आई रिमेम्बर, बाटा वाज वन जहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था। ओके। माय लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने स्टार्टिंग में आईआरएफसी का एग्जांपल दिया था, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं, उसका वो तो मैंने कैसे? सिर्फ चार्ट दिखाने के लिए कि हर ओके मतलब चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे ना हो, हर ओके। चार्ट मूव करता है वैसे ही फेजेस में, कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन मोड में। सो तो दैट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ये सेटअप हम कैश के स्टॉक में तो नहीं यूज कर सकते ना, तो वहाँ कर पे सकते हैं ना सर, क्यों नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आई क्या डिड अ बैक देखेंगे? टेस्ट ऑन दिस, आई डिड अ बैक टेस्ट ऑन दिस ऑन आर्ली चार्ट। मतलब आप अपने उस पे करो, आर्ली पे करो, हाँ वीकली पे करो, या आपके टाइम फ्रेम पे। अजय जैसे आईआरएफसी ही देखें जो आप कल टेलीग्राम में पोस्ट हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे एक्सपेंशन आ रहा है, ये एक्सपेंशन आ रहा है ना, ये एक्सपेंशन ही आ रहा है। अब अगर आप सपोजिंग बाय चांस या यहाँ पे लेते हैं अपन, ये लेते हैं हम क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस नहीं कर सकते सेबी की गाइडलाइन से। यहाँ पे एक्सपेंशन आया, ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट होता 49.50। स्टॉप लॉस मैं अपने हिसाब से, चलो ये स्विंग लेता 32.30, ठीक है। तो आई वुड हैव गॉट व्हाट, कितना मिल गया मेरे को, कितना तो मिल गया 94 तक। तो 50 से 44, 20 पॉइंट्स, 2.5 आर। जो ऑप्शन में रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2.5 आर इन 2 to 3 डेज या इंट्राडे, ठीक है, उतना रिटर्न मेरे को इसमें वीकली चार्ट में मिला। ऑब्वियसली मेरा कैश ट्रेड में, ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस डीप हुआ कैश के हिसाब से, क्योंकि टाइम फ्रेम वीकली है ना। डेली पे करता तो वैसा होता, तो आप कैश में भी कर सकते हो। सी द कॉन्सेप्ट इज सेम, कि वो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन जब होगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है, वो मूव दे के जाएगा। अब हम ऑप्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हम दोनों तरफ खेल सकते हैं। कैश में हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स करेंगे, बट हम कर सकते हैं ना ये सारा कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन 24 से 36, स्टॉप लॉस ऑफ 20, 1:4। सो इट कैन बी डन इन कैश ऑल्सो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू नीड टू रिफाइन योर एंट्री स्टॉप लॉस वो कैश के हिसाब से। गॉट इट गॉट इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Next up is Sudhir Singh. Good morning, everyone. So, thank you for this wonderful session. One doubt, like I think you told about how to enter or how to buy the option. In the similar way, how do we identify what is the right exit point? Should we look for early band tightening for identifying the point? नहीं सर, व्हाट आई डू, आई कैन टेल यू दैट, मैं ना एक आई कीप अ काइंड ऑफ
टारगेट, ठीक है, टारगेट वाला मतलब बेसिकली आई एम लुकिंग एट 2 to 2.5 आवर ट्रेड। Okay. तो अगर मेरा 10 रुपए का रिस्क है तो मैं 25 रुपए के आसपास आई स्टार्ट ट्रेलिंग एटलीस्ट 20-22 के आसपास। और क्योंकि मैं वैसा हूँ, मेरी साइकोलॉजी वैसी है कि मेरे को जब प्रॉफिट ज्यादा दिखना शुरू होता है ना तो आई गेट अनकंफर्टेबल। आई वांट एवरी, मतलब जो बैंक में है वो अपना है, बाकी सब सपना है, मेरा वो है, ठीक है। तो आपका डिफरेंट हो सकता है मेथड। तो यू कैन, बिकॉज अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको टीसीएस ही दिखाता हूँ, चलिए। मैंने आई टोल्ड यू कि हम ये कर सकते हैं, बट एक्चुअली मैंने ये एक ट्रेड में नहीं किया है, ये टीसीएस का जो चार्ट है, ठीक है। आई विल शो यू माय एग्जैक्ट ट्रेड्स, ये देखिए, क्योंकि मेरे को चाहिए, आई डिड 2 ट्रेड्स, फर्स्ट एंट्री एट 66, एग्जिट एट 90-92, यहाँ पे इस कंसोलिडेशन तीन उसकी उसमें, देन आई री एंटर्ड, ठीक है, क्योंकि ये वो मूव चल रहा था, तो देन आई री एंटर्ड, देन अगेन माय स्टॉप लॉस वाज दिस, एंड देन अगेन आई, मतलब अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे ज्ञान दे सकता हूँ कि सर यहाँ पे रेड कैंडल बन गई तो मैंने एग्जिट कर दिया, प्रीवियस डे लो, दैट्स ऑल, मतलब ज्ञान देने के लिए, ठीक है। मेरे को मेरा टारगेट मिल रहा था 2.5 आवर का सर्टेन ट्रेड, आई वाज आउट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हो उसको, हाउ डू यू वांट टू, यू कैन ट्रेल आल्सो, मतलब अगर आप ट्रेलिंग करते हैं तो ये 10 यहाँ पे पहुंच के आपका नेक्स्ट ट्रेलिंग लेवल वुड हैव बीन दिस, बट व्हाट इफ दिस कैंडल एक्चुअली ब्रोक योर स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग, वो तो आप सिस्टम बना के चलो कोई ना कोई, बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल। Thank you. Okay, next up is Ram. नहीं, Sridhar. Sorry, Sridhar. Yeah, hi, good Sridhar? morning to all of you. Yeah. गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर मैंने 20 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था, तो बेसिकली एज अ ऑप्शन बायर मुझे ये जानना था कि 4 to 5 बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जिसको हमें कंसीडर करके चलना होता है फॉर ऑप्शन बायर। Sridhar जैसे ji, अगर आप एक, हाँ जी सर। we have already covered throughout the webinar. हम टेलीग्राम में ना रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देते हैं, बिकॉज अगेन कवर करना मुश्किल हो जाएगा अभी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे है ना आप? हाँ हूँ सर। हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग डाल देंगे अभी, एक इन द नेक्स्ट 3-4 hours or 5 hours you can go through it, because again explaining everything will be difficult for Mohit ji also. Okay? Okay, no problem sir. Yeah, thank you. Thank you. Rakesh Jain. Hello. Yes sir. Good morning, Mohit sir. गुड मॉर्निंग सर। Am I audible? या सर ये वेरी मच। जो आपने बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन के बारे में बताया है इसके अंदर में, तो इसकी क्या कोई पर्टिकुलर बॉलिंजर बिट की स्पेसिफिकेशंस भी है क्या, जिसके आधार पर हम लोग ओपनिंग को कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि ओपनिंग होती है फिर इन हो जाता है। नहीं, मतलब सी अगेन मार्केट है सर, तो मार्केट तो हमें स्टॉप लॉस भी देके जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए हम कैंडल क्लोज का वेट करते हैं, ठीक है, अर्ली कैंडल क्लोज का वेट करते हैं और उसके ऊपर फिर एंट्री लेते हैं, हाई के ऊपर। वी डोंट एंटर। वो मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन आज सपोज कर लीजिए कोई भी चार्ट लेंगे अपने, चाहे एमजीएम की चार्ट लेंगे, कोई भी एक चार्ट लें, तो उसके अंदर में बहुत बार एक्सपेंशन होता है, इन हो जाता है, एक्सपेंशन होता है, इन हो जाता है। तो कोई स्पेसिफिकेशन है क्या हम लोग की, जो बॉलिंगर विड्थ की हम लोग ये ले रहे हैं कि 0.5 के ऊपर में एक्सपेंशन होगा तो हमारे इस स्ट्राइक में आ रहा है, या सिर्फ किसी भी एक्सपेंशन को हम लोग ले रहे हैं?
नहीं, मेरा क्वेश्चन हम बेसिकली हम एक्सपेंशन की उस पे नहीं चलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन पे चलते हैं। तो सी अगेन ये सारा ना चार्ट देख के आपको समझ में आ जाता है। जब व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ चार्ट से 10 20 40 चार्ट देखोगे ना, तो आपको समझ में अपने आप एक फील आ जाएगा कि कौन से पे एंट्री करनी चाहिए थी और कौन से पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, द बेसिक क्राइटेरिया इज कि वो जितना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसके बाद एंट्री करनी ज्यादा है। लेकिन इट कैन रिवर्स, जैसे मैंने ग्लेनमार्क का दिखाया, वो अगले दिन रिवर्स कर गया क्योंकि उसकी न्यूज ऐसी आई कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का ओएफएस वाज कमिंग एट अ 10% डिस्काउंट, तो इट गॉट रिजेक्टेड। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। नॉट एवरी ट्रेड, अगर 100% हर ट्रेड चलने लगे तो फिर तो मतलब क्या ही बात हो गई। लोग तो बिल गेट्स तो कहीं भी नहीं रहा ना, फिर हम तो बहुत सारे बिल गेट्स हो जाएंगे। नहीं, हाँ, नहीं, ओके सर, थैंक यू। या AJ. Next up is AJ. हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस Yes. सर, मैं आपकी वेबसाइट मैंने स्टडी की थी। मुझे सिर्फ 2-3 सवाल हैं, वो वेबसाइट से रिलेटेड हैं, बिफोर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन और एनीथिंग। तो वो मैं पूछ सकता हूँ या बाकी कुछ और सब मतलब अलाउड है? Sir, can you share your number? We'll discuss after the webinar. This is with regards to the webinar doubts. अब मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे मैसेज लेट आया, पर ठीक है सर, I'll share my number, I'll discuss it. Yeah. Yes, sir. Sure. Next up is Shekhar. सर गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? Hmm. सर हेलो। हाँ जी, बोलिए ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन बाइंग में सर, ये अर्ली मॉर्निंग रहती है सर। और ये जो आपका डाटा जो है ये अपडेट नहीं होता है अर्ली मॉर्निंग। मुझे ना तो शॉर्ट कवरिंग दिखती है सर 9:15, 9:16, 9:17 तक, तो वो निकल जाता है मतलब ट्रेड जो है हाथ से। Sir, हेलो। actually we are on 5 minutes delayed data right now. ठीक है, तो उसके बाद एक और महीना 1.5 महीना लगेगा हमको 1 मिनट डिले पे जाने के लिए। ठीक है, तो तब तक तो डिले रहेगा ही। यस सर। Okay, we are on 5 minutes right now delayed data. We are shifting to 1 minute very soon. ओके Yeah. ओके सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर। हेलो। बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना सर, ये मतलब जो बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन में जो आप 1 आवर ले रहे हो, तो मतलब जो इंट्राडे ऑप्शन बायर है उसके लिए तो 1 आवर में मतलब वो मूव सब हो ही जाता है ऑलरेडी। Shekhar ji, the moment we shift to 1 minute na, we'll bring intraday scanners also, like 15 minutes, 30 minute scanner हाँ also. यस। हाँ, हाँ वो वही मैं लेके कह रहा हूँ आएंगे। सर, वो तो अभी 5 मिनट डिले पे है ना हम लोग, तो कोई मतलब नहीं रहा 15 मिनट्स का स्कैनर लेके आने के लिए। तो द मोमेंट यस वी सर। शिफ्ट टू 1 मिनट, हम इंट्राडे 15 मिनट्स 30 मिनट स्कैनर भी एनेबल करेंगे। हाँ सर वो बेटर रहेगा सर हमारे लिए। यस, और सर डेफिनेटली मैं विल ये डू इट। यस सर, थैंक यू सर। और मैं ये कह रहा हूँ सर, ये मैं 1 वीक से देख रहा हूँ, ये दोनों चीजों को मैं देख रहा हूँ। एक तरफ मैं कॉल में रिडक्शन देखता हूँ और दूसरी तरफ बॉलिंजर बैंड देखता हूँ, तो ये मतलब मुझे हार्डली मुझे कोई एक स्टॉक भी ऐसा नहीं मिला होगा जो दोनों में फॉल कर रहा है सर। हेलो। हाँ, सर अब सर मेरे एक को कौन से, सर। जैसे जाइडस मैंने दिखाया 3 जुलाई का एंड ऑफ डे, ये यस देखिए। सर। ठीक है, अब ये दिखाया, ये कॉल में कवरिंग है। हाँ सर। ठीक है ना सर, और जाइडस के आर्ली चार्ट पे आई शोड कि ये 3 तारीख को ही एक्सपेंशन मोड में आया। यस सर। राइट, सो द कॉम्बिनेशन बना है ना।
हाँ, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि देर आर केसेस कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेट कम करना पड़ रहा है फॉर एंट्री। हाँ सर, यस सर, क्योंकि आजकल तो इतने ऑप्शन मतलब मूवमेंट्स हो रहे हैं मतलब बट हमको ट्रेड मिल रहे हैं एक दो ट्रेड तो बहुत कम है ना सर। मतलब जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो ट्रेड्स बहुत कम मिल रहे हैं इस स्ट्रेटेजी पे, इन हाँ सर, स्ट्रेटेजीज पे ट्रेड सर। ट्रेड कम ही मिलेंगे, जैसा मैंने बोला आपको कि आपको हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड ही मिलेंगे, वो भी यस 3 या सर। 4% वाले। ठीक है, हम्म, उतने ही एक्सपेक्टेशन लेके चलिए। यस सर, यस बहुत सर। रेयर केसेस में आपको एमजीएल या टीसीएस जैसे ट्रेड्स मिलेंगे। रेयर नहीं कह सकता, यस सर। मतलब बहुत कम। दैट वुड बी वंस अ मंथ और वंस इन 1 or 2 in 2 months, समथिंग लाइक दैट। हाँ तो आपको मैं बेसिकली एक्सपेक्टेशन सर, ये सर मैं स्टॉक ऑप्शन बाइंग करता हूँ सर 6-7 साल से। तो वही मैं देख रहा था, मुझे मैंने आपका ये वीडियो देखा था पहले तो मुझे अच्छा लगा ये स्ट्रेटेजी। तो सही है सर वैसे। बट यही है कि टाइम फ्रेम और कम हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। और सर एक ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये हमको ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देखना है ना सर। जैसे ये जाइडस में ही आपने दिखाया ये जो आपका कर्सर जहाँ पे है, तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड इसके इसी मतलब स्विंग हाई से ऊपर होना चाहिए मतलब। यस यस, यस सर, यस 11-15 के ऊपर सर, एंट्री। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Sujay. Next up is Sujay. Sujay, हेलो। yes, बोलिए। हाँ, बोल रहे थे कि इसमें स्टॉप प्लस कैसे डिसाइड करें? सर स्टॉप लॉस बताया ना ऑप्शन प्राइस पे। जैसे ये टीसीएस का मैंने एग्जांपल दिया, ये मेरी एंट्री पॉइंट थी 65-66, और ये लेटेस्ट स्विंग। अभी कुछ एग्रेसिव प्लेयर्स इसको भी स्विंग ले सकते हैं, ठीक है, 60 रुपए पे। कुछ इसको लेंगे, इस रेंज को 56-57, कुछ इसको लेंगे। दैट इज अप टू यू टू डिसाइड, आपके कंफर्ट नहीं, लेवल के, मतलब आपके ये तो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आपके हिसाब से मतलब लॉजिकली क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें ये सेकंड वाला था, वो 56 के आसपास मैंने रखा था अपना स्टॉप लॉस, 56-57। बेसिकली 12 से 15% ऑफ प्रीमियम अमाउंट। अच्छा, 12 से 15%। और जनरली टारगेट कितना परसेंट आता है सर? सर टारगेट ऐसा है कि आई ट्रेड फॉर, मतलब बेसिकली आपको ट्रेल करना पड़ेगा, हाउ यू ट्रेल। तो टारगेट अब जैसे मतलब टीसीएस में तो डबल हो गई, एक दिन में डबल हो गई, राइट। हाँ, टीसीएस ठीक है, तो बट मतलब ये जाइडस में आपका 40-50% आ गया था। सो बेसिकली क्या है कि आई ट्रेड फॉर 2 आवर, 2 आवर से 2.5 आवर, तो उस हिसाब से मैं अगर ट्रेड करता हूँ। हाँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब कि 10% या 12% जो मतलब लॉजिकली स्टॉप प्लस है उसको ट्रेल करते चलना है। यस, तो आप ज्यादा ले पाएंगे। अच्छा। और मतलब टारगेट मतलब 40% नॉर्मली मैंने देखा है, जो मतलब दिस कुड चेंज, सी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन, दिस कुड चेंज, बट एवरेज आपको 35-40% ऑफ द प्रीमियम आ जाता है। बट देन योर स्टॉप लॉस आल्सो बिकम्स 15-16%, वैसा बन जाता है। तो अच्छा 2.5 आवर इज नॉर्मली द एवरेज यू गेट ऑन दिस स्ट्रेटजी, ठीक है, अच्छा। विद सम एक्सेप्शंस लाइक दिस टीसीएस हो गया, एमजीएल हो गया। उसमें अगर आप लंबा खींच पाओ, वो अगर तो आप मतलब वो वो तो तो एक्स्ट्रा वंस अ ऑर्डिनरी मंथ, हो गया ना। वंस अ 2 मंथ्स, वो वैसा रहता है ना। हम्म। बट दोज आल्सो ऐड अप ना, आपके प्रॉफिटेबिलिटी में वो भी ऐड अप तो करेंगे सर। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट, हेलो। हाय जितेश here. या जितेश जी कहिए ना। या ये सेटअप सेम टू सेम डेली टाइम फ्रेम पे वर्क कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फोसिस का देखें तो इन्फोसिस लास्ट मंथ में करीबन 7-8 जून के आसपास
जो बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट आया था इन्फोसिस में डेली चार्ट पे। देखिए ये सेटअप मतलब सेटअप हर जगह हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, ये बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन का। सी दैट ये आई आप गॉट इट। ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हो ओपन ना? इंटरेस्ट की बात, या तो इसमें जो ओपन इंटरेस्ट ओआई पूरे मंथ के लिए अगर विजुअलाइज किया जाए, अगर इस सेम सेटअप पे आरली के बदले एक प्रॉपर स्विंग ट्रेड लेने का हो फॉर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज वाया द सेम सेटअप कॉम्बिनेशन ऑफ ओआई एंड। अभी अभी हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये देखो 7 जून को इसने एक्सपेंशन दिया, सपोजिंग उसने ओआई ब्रेकआउट दिया, ठीक है, बट टिल 20th जून 1 2 3 4 5 6 7 8 days आपका द प्राइस रिमेन इन द रेंज ऑफ 7 जून, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद और उसका 28 ब्रेकआउट जून आया। को उसके बाद भी ब्रेकआउट आया, फिर 3 दिन चला गया, हम्म। तो आपकी एक्सपायरी थी 27 जून की, राइट? आपने एंट्री अगर यहाँ पे ली होती 1550 पे, तो आपकी एक्सपायरी तो वहीं पे थी ना कहीं, तो मतलब नहीं तो एज ऑफ एग्जैक्टली 7th जून द 1550 वाली जो आपकी कॉल है, उसका से सपोज प्राइस वाज 40 रुपीज, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द मंथ में प्रीमियम विल बी हाई, यू एग्री? या तो बट एट द एक्सपायरी वो फिर 1570 पे ही है। नहीं, एक तो इसमें एक वेरिएशन है ना, जिस दिन पे ब्रेकआउट आया उस दिन के हाई का जो ब्रेकआउट था वो तो आपका हाँ नहीं ठीक है, या आप कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग नहीं कर सकते हो। सी इफ यू हैव दैट कंफर्ट लेवल कि आप वो लॉन्ग टर्म आप उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, यू कैन होल्ड द ऑप्शन विद द ड्रॉ डाउन, क्योंकि इसमें फिर आपका प्रीमियम जो मैं 10-15% की बात कर रहा हूँ ना, हाँ वो ड्रॉ डाउन 35-40% तक आ सकता है, बट देन यूर रिटर्न विल ऑल्सो गो इन दैट सेंस ओनली, ठीक है ओके ना? अगर आपने 21 जून को जुलाई की ली होती, तो देन यू वुड हाँ हैव मेड अ किलिंग ऑन दिस, ओके, लेट दैट मी इज जस्ट रिफ्रेम दिस। 21 जुलाई को देर इज अ एक्चुअल ब्रेकआउट, जैसे हम 21 आवरली जून में फॉलो कर रहे हैं। आवरली में हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस बॉलिंजर बैंड के एक्सपांशन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, उसके हाई के ऊपर अपन ट्रेड ले रहे हैं, राइट, बिल्कुल आवरली पे। राइट। हाँ सेम तरीके से डेली का जो एक्सपांशन हुआ उसके बाद हाँ 21 को उसका ब्रेकआउट आया। अब उस बिल्कुल पर्टिकुलर समय पे हाँ हमारा ओआई जो है सपोर्ट करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। बिल्कुल, ट्वेंटी यस फर्स्ट जुलाई वो को सपोर्ट करना जून को। चाहिए, यस तो यस 21 जून को जब हम कंबाइंड ओआई देखेंगे तो देयर शुड बी ए पॉसिबिलिटी कि वो कंबाइंड ओआई में शिफ्ट या फिर जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आप 21 का ओआई निकाल सकते हो, अगर 21 जून का, तो आर देयर एविडेंसेस दैट कि उसके अंदर हाँ कुछ लेट ये हुआ था। चलिए लेट अस चेक 21 जून। ये जाइडस का है आई थिंक। नहीं नहीं, मैं इनकी निकालता हूँ सर, हाँ लीजिए, देयर अबाउट इज अ पॉसिबिलिटी 1530 पे था प्राइस, करेक्ट। एंड देयर इज अ डिडक्शन। ओके, सो खाली ओपन इंटरेस्ट एडिशन में 1560 का हुआ है और बेस बिल्डिंग 1540 का हो गया है। ओके, so this shows that there is a possibility. Yes, there is a Yes. possibility. Only But the then now you the should be prepared. concern. हाँ, Sorry, yeah. Now the only concern is that we should be able to spot a visible target which can suffice the daily time frame. हाँ, Because yes, आपका SL भी बड़ा होगा, मतलब 50% of your हाँ, of your premium would be your SL generally in your big trades. right. So it should also suffice the kind of target. So is there any particular way to understand कि अगर इसका कोई लॉन्गर टारगेट जिसको कह सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट मंथ में पूरा कुछ तो यू कैन विजुअलाइज समथिंग। Then you need to see deep ITM strikes put, मतलब अगर आप बाइंग में देख रहे हो तो यू सी डीप ITM पुट्स, अगर उसमें नेक्स्ट सीरीज में राइटिंग हो रही है, करेक्ट। राइट, सो राइटिंग हम देन लोग 1540 का तो जैसे बेस देखा कि पुट का भी ओआई बढ़ रहा था, राइट। वो, ये हाँ, तो पुट अभी वो 1540 इज स्टिल बहुत कम है ना सर, 1530 पे तो वो ट्रेड कर रहा है, हाँ सो 1540 इज नॉट दैट गुड, ठीक है, आई नीड ओके टू सी समथिंग ऑन। जुलाई में मेरे को
समवेयर नियर 1600 1650 ऐसा दिखना चाहिए, तभी मेरा करेक्ट, बिकॉज ओके ओके तभी ओके, मेरे को वो टारगेट वो कंफर्टेबल लगेगा ना, एज गॉट यू इट, सेड कि स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा मेरा। got it, correct. So put OI should be a little bit higher in the deep in the money. या Correct, correct, correct. Okay. Thank you very much. Yeah. वेलकम, थैंक यू। Okay, Lokesh Joshi. Mohit sir, another couple of questions, sir. हाँ ठीक है गुड सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर बाकी सब तो क्लियर हो गया, बस एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मंडे अगर ट्रेड लेना है जो आपने ट्रिक बताई है, तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि एक बार आप बॉलिंजर बैंड को आज स्कैन करके देखिए, और प्लीज एक स्टॉक कोई सा भी आप बताइए कि कौन सा इस पे राइट जा सकता है। नहीं फॉर सर, वो नहीं एग्जाम्पल Lokesh Joshi, sir, we will not give any recommendations. Kindly go नहीं through मैं the recording. Okay. सर ऐसा रिकमेंडेशन हम सजेशन नहीं दे सकते हैं लोकेश सर। नहीं सजेशन का नहीं पूछ रहा हूँ सर सेबी मैं, बहुत जैसे मैंने स्ट्रिक्ट हो गया सर, फॉरवर्ड लुकिंग एनी डिस्कशन ऑन एनी स्टॉक वी कैन नॉट डू सर, सॉरी। ठीक, ओके सर, थैंक यू। इश्ती राजा। हेलो। हेलो। हाँ चवन जी, अच्छा हाँ मुझे ये जानना है, जैसे मतलब किसी भी मतलब ऑप्शन में हाईएस्ट स्ट्राइक, मतलब हाईएस्ट ओआई वाले स्ट्राइक से प्राइस कितना दूर होना चाहिए जहाँ पे कवरिंग है। जैसे आज अभी मैं स्कैन करता हूँ तो आप एचडीएफसी लाइव देखिए सर। इसमें सर हाईएस्ट ओआई 600 पे दिखा रहा है, बट प्राइस अभी 636 है, तो मैं इसको कैसे देखूंगा इसमें तो फिर इसको। आपको इसका बेसिकली क्या है कि आपको चार्ट देखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तभी चार्ट हमने देखना बोला ना पड़ेगा, कि ठीक है। बॉलिंजर बैंड्स और ओआई का कॉम्बिनेशन, तो क्या उसमें मूवमेंट अच्छा दिख सकती है क्या, सिर्फ ओआई के हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज कमिंग, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें है ये, हाँ तो 600 की है, राइट, दिस इज ओआई। उसके बाद रेजिस्टेंस इज आपकी 640 650, उसमें कवरिंग है। सो इट्स, अगर ज्यादा ऊपर है ना तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पुल बैक मार जाए। अच्छा तो आई वुड लाइक टू, फुल बैक। मतलब जो मेरा रहता है, मेरा इमीडिएट ब्रेकआउट पे रहता है एंट्री, मतलब आई एम मोर कंफर्टेबल कि अगर ये प्राइस मेरे को 610 के आसपास मिलता ना, तो आई वुड हैव जी मेड एन एंट्री। अच्छा और मोर ओवर मैंने आपको बताया कि जैसे दिस इज अ मिड कैप स्टॉक, ठीक है ना, अब इसमें कवरिंग भी होनी चाहिए थी, कवरिंग इज हार्डली 1%, तो दिस इज नॉट माय कंफर्ट लेवल, इतना बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है। एक आप उस टाइम पे अभी कुछ देर पहले लुपिन देख रहे थे, तो लुपिन में 1800 की कॉल में तो ओआई अनवाइंड हो रहा था, बट 1820 पर ऐड हो रहा था, तो फिर हमें कैसे उसको देखना चाहिए, उसको फिर इग्नोर मारना चाहिए। हाँ, फिर अगर मतलब अगर आपको लग रहा है कि मतलब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको करोगे ही ना इग्नोर। सी अगेन, देखिए, इट्स ऑल कम टू जजमेंटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आप कैसे जज कर रहे हो वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि यू नीड टू सी द नेक्स्ट बेस्ट, ठीक है। 18 ओके फॉर एग्जांपल अगर लुपिन का ही बात करें, सपोजिंग 1800 में कवरिंग आ रही है, 1820 एज ऑन डेट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है, बट दैट इज नॉट द सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, आपको सेकंड हाईएस्ट देखनी चाहिए। वो शायद मतलब आज का नहीं था, कल का था वो, हाँ, जो भी है, कल का मतलब था। जैसे भी मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो सपोज सेकंड हाईएस्ट इज एट 1860, नाउ अगेन प्राइस मूवमेंट अल्टीमेटली भगवान भाव से, ओ सॉरी, भाव भगवान से, ठीक है ना। जी तो अगर प्राइस मूव नहीं करेगा तो वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा उसकी स्ट्राइक्स में,
तो अगर Okay. ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर वो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंसोलिडेशन, पुल बैक, वो सब आपको मतलब थोड़ा अपने चार्ट रीडिंग के हिसाब से थोड़ा जज करना पड़ेगा। जैसे मतलब कल था ना सर, इसमें 1800 में तो 12% अनवाइंड हुआ था, बट 1820 पर ही हाईएस्ट ऐड हुआ है। तो फिर उसको तो फिर वो अब वही सर मूव मतलब किया कि नहीं किया? हाँ ये है ना, ये 7-8 वो है। हाँ तो क्या हुआ उसका, 12 को क्या हुआ, ये 11 को हुआ ना। तो अब अगर आप देखें 1800 के बाद ये 11 पे जा रहे हैं ना अपन, ये 1800 पे कवरिंग, ठीक है ना सर। 1820 पे एडिशन, फिर 1840 इज अगेन। तो एज पर दिस स्टैंड अलोन पे जाऊं तो मेरे पास रेजिस्टेंसेस बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे बार्स मेरी बड़ी होती जा रही हैं। तो आई मे नॉट बी कंफर्टेबल पर्सनली, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बार्स चाहिए नीचे। तो अल्टीमेटली 12 को हुआ क्या वो देख लेते हैं अपन, कुछ हुआ क्या? हाँ 12 को तो कुछ नहीं हुआ, कल तो शांति 12 था। को कुछ नहीं हुआ, वो वहीं पे घूमता रहा, आधा % नीचे ऊपर वहीं घूमता था ना। दिस इज द प्रॉब्लम। और सेकंड, अभी आपने पूरा सेटअप फिर नहीं देखा ना। 11 तारीख को जो ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन आया उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन तो आया ही नहीं ना। एक्सपेंशन तो नहीं आया अभी। हाँ तो फिर हमारी एंट्री तो डिफाइन ही नहीं हुई। ठीक है, ओके राइट। Vaibhav? Yeah. Yes, sir. सर एक अभी इंफी का कैसे एनालाइज किया था, वैसे एक मारुति का देखने का सर। 8 तारीख को जो मूव आया था, तो बिफोर दैट कुछ when it चेंज हुआ था, that मारुति उसके बाद फॉल भी आ गया। मारुति मैंने ट्रेड नहीं किया था तो मेरे ख्याल से नहीं आया होगा। 8 तारीख को मूव आया ना। हाँ जी हाँ। तो 5 को इट वाज नॉट इन, मतलब दिस वाज नॉट इन माय, हाँ इट वाज नॉट। सी द कॉल, अगर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 12,000 के पास था, 12,000 की सपोर्ट थी, देयर वाज एन एडिशन, बट आई डोंट ट्रेड दिस, ठीक है। ऑनेस्टली आई डोंट ट्रेड दिस। तो वो 13,000 तक जा सकता है क्योंकि वो सपोर्ट से अगर बाउंस कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस तक जा सकता है, बट आई डोंट ट्रेड, दिस इज नॉट माय सेटअप, ठीक है ना। तो मेरे लिए ये में इट वाज नॉट ट्रेडेबल। On chart, if we look on a daily time frame, it looked like a short covering sort of. जो हाँ नहीं, बट आप अगेन आई शो यू अगेन वन थिंग। सी 5 तारीख का ही खोलते हैं, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या थी, 13,000 की, ठीक है। 12,000 की सपोर्ट, इट वाज एट 12,152। अगर मैं चार्ट देख भी लूँ, ये था, ये 8 को तो वो गिरा है उल्टा, ठीक है। 12,000 मतलब फिर 12,000 की सपोर्ट ली है उसने, बट देन द रेजिस्टेंस ऑफ 13,000 वाज नॉट ब्रोकन ना, एक भी बार क्लोजिंग नहीं दिया उसने। सो अगेन माय ओपन इंटरेस्ट वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क इन बोथ डेज। यहाँ पे 12,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी उसने, ठीक है, बिकॉज देयर वाज सपोर्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सी ठीक है ना, और रेजिस्टेंस वाज आल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो उसने 13,000 के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दी है। yeah. I was trying to find out कि if there is something I missed out, वो जो 5% का move था, which we got on the 8th. नहीं वो आप वही होता ना, हर चीज नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड टू बी सिलेक्टिव इन योर। हाँ बॉलिंजर बैंड्स, प्योरली बॉलिंजर बैंड्स पे करते Bollinger Band, तो अब ये 400 तो ये आप 600-700 पॉइंट पे कर सकते थे, बट देन यू हैव टू सी इन दैट वो मतलब नॉट एज ए कंप्लीट सेटअप, फिर यू आर वायलेटिंग द मतलब आई वुड हैव बीन वायलेटिंग दिस सम पोर्शन। वो आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है ना। हाउ यू मोर यू कैन ऑप्टिमाइज दिस, द ओनली थिंग इज दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। हाउ मोर यू कैन ऑप्टिमाइज दिस स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव मोर, getting more trades, more profitable trades, less drawdowns, वो आप करेंगे तो और भी अच्छा होगा ना। ठीक है। Okay, last question for the day, Ram. Good afternoon, sir.
Good afternoon. Sir, my question is, sir, I'm not asking you for any this forward-looking recommendation, but suppose अगर मुझे मंडे के लिए ट्रेड करना है, मतलब ढूंढना है, तो आप मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बता देंगे. I'm not asking you for any stock. Ram sir, please go through the recording. He has already explained throughout the webinar what is the process. ये रिकॉर्डिंग हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. बिकॉज अभी क्योंकि तक सर फिलहाल अभी मैं चेक कर रहा था, तो मंडे के लिए ना, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो मुझे कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा सर. तो मुझे मंडे के लिए डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा क्या सर? नहीं सर, देखना हमें आर्ली टाइम फ्रेम है. ठीक है, तो अभी क्योंकि मार्केट बंद है तो हमारा ये वाला सेटअप चलेगा. पहले आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है. अच्छा 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 अच्छा. ठीक है, उसके बाद वेट फॉर बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन. उसके बाद यू हैव टू वेट. हाँ, तो अभी सर अगर मुझे मंडे के लिए कोई वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो अभी मैं नहीं कर सकता ना सर. ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर कुछ मिलता है तो यू कैन प्रिपेयर ना. हाँ, पर प्राइस एक्शन पे नहीं मिलेगा सर मुझे अभी. प्राइस एक्शन पे हो सकता ना मिले. हाँ सर, क्योंकि अभी मैंने देखा सर, मुझे सिर्फ एक आईटीसी दिखा है और सर वो तो फिर आप ये देखो ना, अभी डे एंड पे 15 मिनट का ही चार्ट बेचेगा ना आपके पास. जो अच्छा लास्ट अच्छा अच्छा, अर्ली कैंडल रहती है समझ. दैट इज ऑफ 315. तो आपको क्या ओके ओके, स्कैनर हेल्प करेगा. तो सर इसमें फिर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँ तो? अर्ली से नीचे नहीं जा सकते हैं उसमें स्कैनर में. स्कैनर इज फिक्स फॉर अर्ली. राइट राइट सर, ठीक है सर, समझ गया. दैट वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट कैंडल 15 मिनट्स की होती है ना सर. ओके ओके, थैंक. लास्ट क्वेश्चन मोहित जी, विमल कुमार. हेलो सर. यस सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सभी लॉन्ग ट्रेड के एग्जांपल दिए, एक शॉर्ट ट्रेड के कोई एग्जांपल दिखाइए ना सर. शॉर्ट ट्रेड बिलो सपोर्ट. मार्केट बुलिश है तो मैंने लॉन्ग ही किया है. But we have to identify both sides. Yes, I agree with you. याद नहीं आ रहा है शॉर्ट ट्रेड कौन सा किया था. पीएफसी का क्या था, पीएफसी सेटअप में था. शॉर्ट ट्रेड मेरे को मिले थे अप्रैल मई में मिले थे सर. वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड काफी. 4 जून को तो बहुत सारे आए हैं. 4 जून को. 4 जून तो मतलब 4 जून तो उसको तो हम एक पर्टिकुलर वन ऑफ केस करके छोड़ ही देंगे ना सर. उसको अगर उस पे बेसिस पे मैं करूंगा तो फिर तो आई कुड हैव गॉट मोर. परसिस्टेंट राइडर बीईएल में क्या था, लेट मी चेक. नहीं, ये भी लॉन्ग ही ट्रेड था मेरा. पिछले महीने में कौन सा, डोंट रिमेम्बर. नहीं सर, अभी ना कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को. बट इट वर्क्स बोथ वेज, एक्चुअली इट वर्क्स बोथ वेज, बट अभी कुछ याद नहीं आ रहा. ट्रेड अगर पॉसिबल नहीं है तो फॉरवर्ड लुकिंग के लिए प्रोसेस दोबारा से डिफाइन कर देते हैं. शॉर्ट ट्रेड के लिए जैसे बिलो सपोर्ट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक पुट्स को एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट को. ये देख लीजिए सर. ठीक है, तो बेसिकली बाइंग से उल्टा बिल्कुल. आपको बिलो सपोर्ट देखना है और पी में कवरिंग देखनी है एंड बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन ऑन द डाउन साइड हो. डन है सर.
ओके सर, कोई लाइव अभी हम चेक कर सकते हैं क्या? नहीं यार, अभी मेरे को कुछ ध्यान में नहीं है, आई डोंट नहीं रिमेम्बर। नहीं, एट प्रेजेंट हम क्या मतलब ओआई स्कैनर के अंदर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करके चार्ट देख सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रेड डेवलप हो गया। ये 5 तारीख का है, ठीक है, बिलो सपोर्ट। अब देखिए मार्केट बुलिश है ना, तो आपको बिलो सपोर्ट वाले मिलेंगे ही नहीं। सी अगेन 1% रिडक्शन इन ओआई, 4%, दिस इज नॉट माय कंफर्ट लेवल। मिनिमम 10% होना चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा सब्सटैंशियल होना चाहिए। 8 को अगेन सी, अगेन इट इज नॉट सब्सटैंशियल। ओके एंड टाटा मोटर्स थे मोहित जी। टाटा मोटर्स चंबल फर्टिलाइजर थर्ड वन, फोर्थ वन चंबल फर्टिलाइजर। 12th को है सर जी, ये बैन है। बैन, ओके ओके दिस इज इन बैन। 12th को 12th को लें सर, फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएगा, फंसा दोगे आप। कहाँ है टाटा मोटर्स? सॉरी, ओके। हिंडाल को नजर आ रहा है कुछ 9%। इंडियन होटल, इंडियन होटल, बिगेस्ट लैंड, बिगेस्ट लैंड 14%। 14%। ओके, डिवीज लैब का क्या है? 14% बिलो सपोर्ट 46। ओके ओके, नया नहीं सर, कुछ और देखते हैं सर। चलिए एक काम करते हैं, 3 जून को देखते हैं क्या मिला था, कुछ मिला था क्या 4 जून के लिए? डाबर 514% था सर दैट इज एडिशन ना सर, एडिशन। और 4 जून को वो कंजम्पशन स्टॉक्स वाज अप, मार्केट वाज डाउन, कंजम्पशन स्टॉक्स करेक्ट। तो सपोर्ट प्लेड आउट, बट ही वांट्स स्पेसिफिकली शॉर्ट ट्रेड। यस सर, आई एम शॉर्ट प्लेयर। नहीं ऐसा मैं भी शॉर्ट प्लेयर हूँ, ऐसा नहीं है, फिर मुझे और पीछे जाना पड़ेगा यार, बिकॉज आई टुक मैनी शॉर्ट ट्रेड्स, मतलब नॉट रिसेंटली। सर नाउडेज एचडीएफसी बैंक डाउन चल रहा है ना पीछे कुछ दिन से। अरे उसको नहीं छेड़ता भाई मैं, वो ये इसका ना न्यूज बहुत आती है, कभी एमएससीआई में इंक्लूड हो गया, कभी डिक्रीज हो गया। हाँ ये नजर आ रहा है सर, दिस इज गुड। देखते हैं कुछ हुआ क्या। तेरह मई, ये तो यहीं पे भी है, MCX ऑन 9th जुलाई। नहीं, MCX was not in this list। तो 13 मई देखते हैं अपन। अच्छा 4 जून तो नहीं देखना ना, सॉरी 4 जून तो देखना ही नहीं है। 13 मई को कुछ नहीं है, नहीं है, नथिंग। दिस शुड शो समथिंग। 7th मई, 7th मई इज ओके, 6th मई। मतलब 5th नहीं, जुलाई का बच गया, 6th मई। MCX was not okay। अभी M6 का चार्ट है, 6th मई देखा ना अपन ने ऑप्शन। परफेक्ट है। अभी ये देखिए,
अब इसमें ये लाइव स्कैनर था, ठीक है ना, 7 मई का दिस वाज द ये 4th जून आ गया फिर से। दिस वाज द एक्सपेंशन 11:15 बजे की 10:15 बजे की 10:15 11:15 की कैंडल, ठीक है ना, 7th मई Bollinger Band expansion on the downside. Price is 3960-3822. Options on 7th May live. पहले 6th May का देखते हैं अपन। Highest put open interest was 4000. Perfect. ठीक है? So this was my major support, right? Yes, sir. Next day expansion. Bollinger Bands, very first candle, and they started covering. ठीक है, तो ये आपका 7th मई का ट्रेड। सी यहाँ पे एंट्री 3956 फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे 3743 7%। एक ही कैंडल में आपका कितना 3976 से 100 पॉइंट आ गई, 3% तो आएगी। 2% प्लस तो इसमें ही आ गया फर्स्ट कैंडल में। हाँ 3% तो उसी में आ गई ना, 2.5% 2.5%, ठीक है ना। इट वर्क्स बोथ वेज। जस्ट दैट कि मतलब क्या रहता है कि अगर आपका ओवरऑल मार्केट बायस पॉजिटिव है तो यू फाइंड लॉट ऑफ लॉन्ग ट्रेड्स, अगर ओवरऑल नेगेटिव बायस है तो यू फाइंड लॉट ऑफ शॉर्ट ट्रेड्स। बट सर पॉजिटिव मार्केट में अगर नेगेटिव स्टॉक आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ फॉल आएगा, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन इंडिकेशन आपको आएगा। यस सर। अभी जैसे मैंने ग्लेनमार्क दिखाया, उसमें देयर वाज एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट इन दिस कॉल, ठीक है। 10:15 बजे जो आया, 2:15 बजे ये जो एक्सपेंशन आया, उसके बाद भी आपका एडिशन था, और नेक्स्ट डे न्यूज़ क्या आई, डिस्काउंट प्लेसमेंट ऑफ। तो एवरीथिंग चार्ट एंड डेटा दैट डिस्काउंट्स न्यूज़ फ्लो इन एडवांस, मतलब आपको इंडिकेशन लग जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू। Yeah. With this, let's wind up today's webinar. Thank you. And एक मिनट कुछ वो इसमें कुछ है क्या? yeah. वो चैट में मैं देख लूं जरा। Yes sir. Telegram link for video recording. I have sent it, sir. Yes. I have sent it. Can we add 75-minute time frame? That will be done at a later date. वो तो आप बोलोगे, है ना? Can we get recording? Yes. Okay. We made good money on ONGC because of strike and sell. Thank you, Sugata Sagar ji. Thank you very much. You made money. I am happy. Okay. Then we have. अच्छा. AJ ने मुझे नंबर भेज दिया है। अच्छा। तो Okay. I'll send you on Sure. WhatsApp, ठीक है? Yeah. वो जो बात करना चाहते थे ना आपके कोई। Yeah. Sure sir. Sure. तो वो भेज देता हूँ। हाँ डन, दैट्स इट, ये ही। ठीक है सर, डन है, हो गया। Thank you. थैंक यू सर। Thank you everyone. Please do subscribe to Strike and start using it. Yeah. Thank you so much.